All right, good to go. So in the last class, what we started off was mechanisms of transport. That's basically diffusion, osmosis, and active transport. Or we talked about what the mechanisms of transport were, what was the difference between the active and the passive mechanisms, and then we talked about diffusion. Okay. So very quick review over diffusion of diffusion. कि भाई diffusion हमारे पास क्या होता है? Diffusion is basically the movement of particles. Diffusion is basically the movement of particles from a region of high concentration towards a region of lower concentration. कब तक move करेगा? जब तक हमारे पास एक equilibrium reach नहीं हो जाएगा, until the particles moving from one part to the other will become equal to the movement of the particles moving in the opposite direction. ठीक है? अब तो break नहीं हो रही. Acha. And along with that, we talked about the concept of what concentration is, and we talked about the rate of diffusion. अच्छा, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? Is there any breakage or if it's low? It's clear. ठीक है, ठीक है, ठीक है. All right. Rahma, बच्चे, try connecting whatever earphones वगैरह you're using again, please. या पे try logging in again, शायद इससे बेहतर हो जाए. अच्छा जी. So today what we're going to start off with are the factors affecting rate of diffusion. ठीक है, देखो होता क्या है, क्योंकि diffusion एक passive process है, it cannot be controlled, लेकिन there are certain parts of the body where diffusion needs to be very efficient, it needs to be very quick, right? For example, if I'm breathing in the air, the oxygen from the lungs need to go into the red blood cells very quick, and the carbon dioxide from the red blood cells need to get out into the lungs, right? Similarly, when the very same red blood cells are going towards a respiring tissue, तो वहां भी gaseous exchange diffusion के through होता है, it needs to be very quick. Similarly, when I am done eating the food, whatever the digested nutrients that I have, they have to move into the blood through diffusion mainly. ठीक है? तो to allow these process to occur, उन सारे parts की कुछ ना कुछ adaptations होती हैं. Now, these adaptations increase the rate at which diffusion occurs. As I try logging in again. All right, chalo, chalo. Acha ji. Now, starting off with factors affecting the rate of diffusion. ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास कुल मिला के 5 फैक्टर्स है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. उनमें से 3 whenever increased will increase the rate of diffusion, and the last 2 whenever increased will decrease the rate of diffusion. All right. अच्छा जी. Now, the very first factor that we have is what we call as concentration gradient. All right. Now, what do we mean by this word? What do we mean by the word concentration gradient? Concentration gradient basically means difference in concentration. All right. अच्छा, difference in concentration का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दोनों जगह के ऊपर particles के बीच में difference कितना है. For example, if we go back to the very first example that we had, initially we sprayed about 100 particles of air freshener on corner A and there were 0 particles of air freshener on corner B. इन दोनों A और B में difference कितना था? 100 minus 0 is equals to 100. All right. अगर for example in another case, इसी रूम के अंदर अगर मेरे पास for example कॉर्नर ए के ऊपर 100 पार्टिकल्स होते और कॉर्नर बी के ऊपर 50 पार्टिकल्स होते,
अब कॉर्नर ए और कॉर्नर बी में डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। अब क्योंकि मेरे पास ये जो डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन है ये कम हो गया है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो भी कम हो जाएगा, राइट? तो what we say is, if you increase the difference in concentration, the rate of diffusion will also increase. ROD is rate of diffusion. ठीक है? अच्छा, अब at your level you are not supposed to know the science behind it. ये AS level पे जाके पढ़ोगे, लेकिन but you might have a question कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बेटा, होता क्या है, जितना ज्यादा डिफरेंस पार्टिकल्स के बीच में होता है ना, बिटवीन द टू साइड्स, उतना ज्यादा जब पार्टिकल्स हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहे होते हैं ना, उनको स्पेस मिल जाता है मूव करने का। सो जितना ज्यादा दो जगहों के अंदर डिफरेंस आता है, उतना द पार्टिकल्स कैन इजीली मूव, वो कम टाइम लेते हैं मूव करने के लिए। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बात करी थी कि देखो, जितना कम टाइम कोई भी प्रोसेस लेगा, रेट बढ़ जाएगा। द लेसर द टाइम द फास्टर द रेट। ठीक है, रिमेंबर दिस। द मोर द टाइम टेकन, the lesser the rate would be. All right. हम लोग इस चीज को ना, we're going to remove this. It's taking a lot of space. All right, खैर खैर खैर, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, पहला फैक्टर हमारे पास ये हो गया। इफ द स्पेस इज मोर, नहीं देखो डिस्टेंस के उस पे नहीं मेरा बच्चा, देखो इसको इस तरीके से देखो दिशा, इसको इस तरीके से देखो। लेट्स से मेरे पास एक कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर ए के ऊपर, लेट्स से देयर आर 7 पार्टिकल्स, ठीक है। कॉर्नर बी के ऊपर देयर आर 3 पार्टिकल्स। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास है, दोनों मूव कर रहे होंगे। अब मुझे बताओ, इफ particles on corner A would start moving towards corner B, what is the maximum number of collisions that can happen? है ना? अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि भाई ये तीन जो वो थे, ये टकरा गए, बाकी सारे जो पार्टिकल्स थे, लेट्स से वो कॉर्नर ए से कॉर्नर बी की तरफ मूव कर गए, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कॉर्नर ए के ऊपर मेरे पास वही 7 पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्नर बी के ऊपर अब मेरे पास 5 पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर ए वाले पार्टिकल्स इसकी तरफ मूव करते, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिजन दैट वुड अकर आर 5। लेट्स से भाई ये दो पार्टिकल्स थे, ये कोलाइड करे बगैर बी की तरफ मूव कर गए। तो देखो वही वाली बात ना, मुझे एक बात अब इसको मुझे एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। देखो, let's say there are you are here on corner A, corner B के पास there are very few people, it's going to be easier for you to move, right? But if corner B was as crowded or this crowded, so it's going to be difficult for you to navigate, collisions हो रहे होंगे, you'd keep on bumping into people। तो ये बेसिकली इसके पीछे ना एक लॉजिक है कि देखो, जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस होगा ना, the more easy it would be for the particles to move from one place to the other, from, तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा जी, आप दूसरे फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। द सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव इज टेम्परेचर। अच्छा जी, अब देखो क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अच्छा देखो, अब काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी क्या होती है। अब लेट्स से Amna and I, we have to go from one place to the other, and
let's say she's treating me to coffee, ठीक है, and we're the same place and we have to go to the same coffee shop. अब आमना, क्योंकि मैं आमना, let's say, you know, she's driving and she drove her car there at the speed of 80 kilometers per hour, right? अच्छा, मैं क्योंकि बुढ़ा आदमी हूँ, मैंने क्या करा, आई ड्रोव द कार स्लोली एट 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट? सो आमना इज गोइंग टू रीच एट दैट पर्टिकुलर प्लेस फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज हर स्पीड वाज फास्ट। So similarly, if I'm going to increase the temperature, the speed at which the particles are moving will increase. Why? Because an increase in temperature increases the kinetic energy. So when the kinetic energy will increase, the rate of diffusion will also increase. अच्छा, तीसरा वाला जो फैक्टर है ना, उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, so that we won't have any problems with this concept all throughout our syllabus and A levels के अंदर, and you know you're going to discuss it after as well. That factor is surface area to volume ratio. अच्छा भाई, अब इसका मतलब क्या है? लेट्स फॉरगेट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसको थोड़ी देर के लिए ना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं सरफेस एरिया से। कैन एनीवन टेल मी, अगेन आई डोंट वांट अ राइट आंसर, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट यू गाइस नो, ये सरफेस एरिया होता क्या है सर? मतलब यू नो वी कीप ऑन हियरिंग अबाउट इट, but we can't define it. So मतलब what do you think surface area is? हाँ भाई, anyone? Surface area, the area exposed to the surroundings. Very good, sir. Very good. Maybe the area occupied by an object with a total area हो जाएगा, right? वो surface area तो नहीं होगा। Surface area हमारे पास क्या होता है? How do we define surface area? Surface area is basically area of any object, as Sarin said. So area of the surface of the object. चलो, that's very intelligent of you, Rahima. खैर खैर, देखो इसको समझो, इसको समझो। देखो, नहीं नहीं सर, you were right before. How do we define it? I'm going to explain this, don't worry. It's an area of an object exposed to the external environment. Exposed to the external environment. ठीक है? अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो, अब लेट मी गिव इट टू यू, let me explain to you in this manner कि I as an adult human being am made up of about 1 trillion cells. I'm made about, average के ऊपर, an adult human being contain 1 trillion cells. लेकिन क्या out of all those 1 trillion cells am I exposing all of the cells to the external environment? मेरा external environment क्या? Atmosphere, the air, right? No, I'm not, right? I'm barely exposing about a percentage of it. वो भी स्किन के अंदर, वो भी कवर्ड है। मेरे बहुत सारे सेल्स हैं which are making up the total volume, which are making up the total area that I have, लेकिन वो external environment से exposed नहीं है। This is what surface area is. ठीक है, कि मेरे पास external environment से एक चीज का कितना एरिया एक्सपोज्ड है। लेट मी शो इट टू यू इन अनदर मैनर, ठीक है? इसको हम दोबारा देखते हैं और इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है, लेटर ऑन। लेट्स से मेरे पास एक शुगर का क्यूब था, a large lump of sugar, and I put it inside water. आप इस शुगर के लंप के अंदर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। Some of the sugar molecules will be on the outside, on the surface,
बाकी सारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे they would be on the inside in a particular time, या एक वक्त के अंदर, एक वक्त के अंदर कितने, और इन सारे शुगर मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ कौन से वाले मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो पाएंगे? द वन इन इन ग्रीन। जब ये वाले शुगर मॉलिक्यूल्स, जब ये वाले शुगर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे ना, फिर किसकी बारी आएगी? फिर इन जो शुगर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ है उनकी बारी आएगी, राइट? जब ये वाले शुगर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर जो सबसे अंदर वाले शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो डिसॉल्व होंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? अबाउट 50% ऑफ दिस वुड डू एज वेल। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब मैंने क्या करा, आई डिसाइडेड टू टेक अनदर क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम, बट आई कट इट इन हाफ। मैंने इसको ना दो चार टुकड़ों में कर दिया। आई मेड स्मॉलर क्यूब्स, 4 of them. Now the sugar molecules in purple, the sugar molecules that I'm drawing in purple are the same sugar molecules that are exposed to the water in both the cubes. मतलब ये larger वाला cube और ये छोटे वाले cube। लेकिन अब when I cut it in half, I have also exposed new sugar molecules। मतलब ये वाले जो sugar molecules है ना, right here, right here, right here, right here, अब पर यूनिट टाइम, एक वक्त में, ये जो छोटे वाले शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, इनके अंदर ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो रहे होंगे कंपेयर टू अ सिंगल लार्ज क्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सरफेसेस एक्सपोज कर दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शुगर क्यूब्स के लिए क्या था? दिस वाटर इन विच दे वर डिसॉल्विंग। अब देखो, जो टोटल वॉल्यूम एक इस बड़े वाले क्यूब की थी, अगर मैं चारों क्यूब्स की वॉल्यूम को एड अप करूं तो इसी से निकले ना, तो टोटल वॉल्यूम ज्वाइन अप करके उनका साइज भी, उनकी वॉल्यूम भी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं आया। हाँ, सरफेसेस जो एक्सपोज थी वो बढ़ गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो द वॉल्यूम रिमेन द सेम बट द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, hence the surface area to volume ratio also increased। अब अगर हम इसी perspective को, if we would talk about it in terms of the human body, my body have absorptive surface, cell membrane is an absorptive surface भाई। अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है लंग के सेल से, एल्वियोलस से, रेड ब्लड सेल के अंदर, तो इट हैज टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। if I am digest absorbing food from the small intestines, it has to cross to the cell surface membrane। लेकिन क्या मैं अपनी सेल सरफेस मेम्ब्रेन को कम वॉल्यूम में उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ा सकता हूँ? मैं बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं बिफोर वी मूव ऑन, ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए। लेट्स से मेरे पास एक एनिमल सेल था, मैंने उसका ना, लेट्स से ये वाला एरिया लिया, सी, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन थी ना इसकी, ये इतना एरिया जो था, मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सेल, the cell membrane that I had was lying straight, ठीक है। अब लेट्स सी कि, अब लेट्स अज्यूम कि थ्रू द सेल मेम्ब्रेन some oxygen molecules, through the cell membrane some oxygen molecules had to pass through, ठीक है। अब how many oxygen molecules can pass through this membrane? Let's see, मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4, कि मतलब पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट टाइम 4 molecules of oxygen are passing through this, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ,
क्या मैं इसी एरिया के अंदर, इतनी ही वॉल्यूम के अंदर, कैन आई कीप अ लार्जर पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? क्या मैं इतने ही एरिया वॉल्यूम के अंदर, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसके अंदर फिट हो रही है, क्या मैं उससे ज्यादा बड़ी मेम्ब्रेन फिट कर सकता हूँ? हाँ या ना वाला सवाल है, यस और नो। कि लेट्स से इसको और आसान कर देते हैं कि इफ आई हैड अ स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस होता है वो 2 सेंटीमीटर था फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं 2 सेंटीमीटर के स्पेस के अंदर 2 सेंटीमीटर से बड़ी मेम्ब्रेन रख सकता हूँ? कैसे? हाउ? सारे में कैसे? तो क्या दिशा से नो के सर आप नहीं रख सकते? देखो मैं फोल्डिंग इट, वेरी गुड मॉडल, वेरी गुड। ठीक है, देखो देखो कहने का मकसद क्या है इज द मैं अब, चलो लेट मी गिव यू मोर रिलेटेबल एग्जांपल। मेरे कबर्ड का जो शेल्फ है ना, कंपेयर टू द jeans that I wear, it's smaller. My jeans is longer than, or has a larger size compared to the shelf in my cupboard. But I fit more than 5 jeans inside of the shelf. How so? By folding them. तो क्या मेरे पास जो मेरी सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है? वो भी फ्लेक्सिबल है। सो कैन आई नॉट fold the membranes partially like this? अब जब मैंने ज्यादा मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के एक 2 सेंटीमीटर की स्पेस में रखी, अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पास करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 times more than they were passing on the straight membrane in our case। ठीक है, टोटल वॉल्यूम सेम रहा, मैंने एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस बढ़ा दी। अब जहां 1 सेकंड के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जा रहे थे, अब उतनी ही देर के अंदर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ नहीं गया? बिल्कुल बढ़ गया। तो हम लोग कहते हैं, तो अच्छा, अब nobody is going to ask you to describe surface area to volume ratio, but does anyone still have a problem with the concept of it कि surface area to volume ratio actually होता क्या है? ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अब देखिए, तो हम लोग जितना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, वो तो मेरे बच्चे इंक्रीज करेंगे, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस बढ़ जाएगा, allowing more particles to diffuse per यूनिट टाइम। मतलब अगर 1 सेकंड है तो भाई ज्यादा पार्टिकल्स मूव करें पर सेकंड, दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, whenever they increase, right, they will also increase the rate of diffusion। ठीक है जी। Now up, let's talk about two more factors. Let's talk about two more factors that whenever increased would lower down the rate of diffusion। ठीक है, अच्छा जी। So let's talk about the fourth factor that we have, and that's the distance, right? अच्छा, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। Why? Because it will increase the time। अब let me give you an example, let me give you an example। uh, let's say कि a friend of mine and I decided कि हम लोग ना, let's we will go to Islamabad।
for a trip. ठीक है, Islamabad is here. Now let's say that friend is traveling from Lahore, which is right here. I am traveling from Karachi. So let's say if we are driving and if we're driving the very same car of the very same model and make, and if we're driving at the same constant speed, जितनी देर के अंदर मेरा दोस्त लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगा, मैंने आधा डिस्टेंस कवर करा होगा. Why? Because I live further away from Islamabad. My friend, since he is near, even if he's going at the same speed as I am, he's going to reach earlier, right? So जितना डिस्टेंस बढ़ जाता है ना पार्टिकल्स को, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक पहुंचने का, right? ये चल, let's take another example, right? So let's say I have this air conditioner, only one, and I put it in my classroom. So my classroom is fairly small, right? It can accommodate, let's say, what, 10 people. ठीक है? Now but if I would put the very same air conditioner in an auditorium that could house about 100 people, that auditorium is going to get cooler in more time. It's going to get cooler. It's going to take more time for the auditorium to get cool. Why is that? देखो air conditioners भी तो हम बस diffusion के ऊपर काम कर रहे हैं ना. Warm air in, cool air out, and the cool air diffuses towards where it's not present. Do we understand this? So more the distance, the more the time it takes for the particles, the lesser the rate of diffusion. Acha. What's the fifth factor? The fifth factor is the size or the mass of the particles. The more the size of the mass of the particles, the more time they're going to take to diffuse, increasing the rate of diffusion, decreasing the rate of diffusion. ठीक है? जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, जितना कम डिस्टेंस होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा डिफ्यूज डिस्टेंस या फिर साइज और मास ऑफ पार्टिकल होगा, the slower they're going to go and the rate of diffusion is going to decrease. ठीक है? अब इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए. We have bowling balls, 10-pin bowling balls होती हैं. Each bowling ball is about 6 kilo. The lightest is about 6 kilograms. अब let's say भाई मेरे एक हाथ में टेनिस बॉल है, एक हाथ में bowling ball है. If I'm going to flick my hand in order to throw them away, bowling ball तो डायरेक्ट मेरी टांग के ऊपर आके गिरेगी. हाँ, टेनिस बॉल आगे चली जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका मास कम है. केमिस्ट्री के अंदर भी you guys have this question, which is a very popular MCQ question when it comes to diffusion, कि भाई उसने in a closed flask, the examiner has put two cotton wools, one containing HCl, one containing ammonia. Now, whenever ammonia and HCl react together, a white solid ammonium chloride is formed. Ammonia ka mass 17 and nitrogen is 14, hydrogen is 1, 17 plus 3, 14 plus 3, 17. Hydrogen chloride का mass 36.5 है, 35.5 chlorine, 1 hydrogen. अब वो कहते कि अच्छा बताओ, where will ammonium chloride be formed, right? मैं कहते कि most probably D पे बनेगा. क्यों? Because since ammonia is lighter, वो उतने जितने टाइम के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ तक डिफ्यूज करेगा, अमोनिया ज्यादा डिफ्यूज कर जाएगा बिकॉज इट्स लाइटर इन मास, राइट? तो ये चीज होती है. So these were the 5 factors affecting the rate of diffusion. Are we clear till here, guys? Chalo. Okay. So we're done with the easy stuff. Okay. This topic is easy. All of it. Now, let's come to a more interesting concept. Let's come to the concept of, okay, we don't need this anymore. Yes, we read the definition of the surface area, but we don't need the examples anymore. Okay. So we're going to talk about the next mechanism of transport, and that the most important one, and that's osmosis. ठीक है? Osmosis को होने के लिए 3 conditions required. ठीक है? अब सबसे पहली चीज, again, I know most of you or all of you rather are aware of what osmosis is.
तो सबसे पहले देखो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, तो ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट किस चीज की? सो ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ व्हाट, of water molecules. Very good. So I'm just going to shorten down water as H2O. So water molecules. ठीक है, water particles, water molecules. Very very good. अब बात आती है कहाँ से कहाँ, from where till where? हम्म, तो हम कहेंगे it's a movement of water molecules from, हाँ जी, from a higher concentration to lower concentration. ठीक है, higher to lower concentration gradient. ठीक है, सही है, fine. I'm agreeing with you. ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात ही बताओ, अगर वाटर पार्टिकल्स हाई टू लो कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करते, ये तो डिफ्यूजन हो जाता। मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, इवन वाटर, if they're moving from a region of high concentration low concentration, that's diffusion. How is osmosis different? In osmosis, water molecules do not move down the concentration gradient. They neither move from higher to lower, they neither move from lower to higher concentration. Osmosis की कहानी ही अलग है, ठीक है। What do we say? SRM said it's a movement of particles from a region of, no, this is not against the concentric gradient. Yes, Rafta, they would move through a semi-permeable membrane, ठीक है। No, they are not going to move against the concentration gradient. इसको देखो देखो, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी, परेशान नहीं होने का, ठीक है, इसको समझो। So there are movement of water molecules from a region of high, what, high water potential. So we're going to highlight this word, water potential. High water potential से कहाँ, to low water potential। फिर राफ्ता ने मुझे बताया था कि सर देखें, दो कंडीशंस तो आपकी ये हो गई। नहीं, रहमान, नो नो, दैट्स नॉट द केस, विल सी, ठीक है। अच्छा देखो देखो, अच्छा ऐसे ने मुझे बताया था, सॉरी, देखो, सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन, पहली बात कंडीशन क्या होगी कि ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हुई, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, थ्रू वाई, एक्सक्यूज मी, आई यूज द वर्ड वाया फॉर थ्रू क्योंकि छोटा है, थ्रू सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, कब तक अगेन, until the water potential becomes equal. All right, अच्छा जी, अच्छा, अब today for whatever time that we have, हम ना थोड़ा osmosis को and how is osmosis affecting the organisms, इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। We're going to, take our sweet time in understanding this concept of water potential। भाई अब ये वाटर पोटेंशियल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वाटर पोटेंशियल होता क्या, ठीक है। देखो, यूजुअली, हमेशा नहीं अगेन, लेकिन यूजुअली whenever we talk about osmosis ना, we take in, or we talk about, or we compare rather, the different solutions। अगर हम लोग अपनी बात सोल्यूशन से शुरू करें, व्हाट इज द सोल्यूशन, आई एम कमिंग देयर, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 more minutes, ठीक है। देखो, अगर हम लोग बात करें सोल्यूशन से, व्हाट इज द सोल्यूशन मेड अप ऑफ, टू थिंग्स द सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ। कोई भी सोल्यूशन दो चीजों से बनता है, कौन कौन सी, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स। वेरी गुड। सॉल्वेंट वो जिसके अंदर चीजें मिक्स हो रही है, यूजुअली वाटर। सॉल्यूट क्या होता है, वो कोई भी पार्टिकल जो मिक्स हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने टैंक बनाया तो टैंक इज माय सॉल्यूट। मैंने वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल इन माय केस, आई एडेड सम सॉल्ट, दैट्स सॉल्ट इज अ सॉल्यूट।
I add sugar in the water. Sugar is a solute. ठीक है, मेरे पास मेरे पास एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो क्या है, दैट्स व्हाट अ वाटर पोटेंशियल इज। ठीक है, सो बेयर विद मी, ये बात समझ में आएगी, परेशान मत होइएगा। हाउ डू वी डिफाइन वाटर पोटेंशियल? इट्स अ रेशियो बिटवीन solutes and solvent in our case is water molecules। ठीक है, अच्छा, हम वाटर पोटेंशियल इज अ लार्जर वर्ड, हमें उसका सिंबल नहीं पता होना चाहिए। मैं अपने लिए, सो दैट आई कैन शॉर्टन इट डाउन, मैं आपको सिंबल बता रहा हूँ। इसका सिंबल क्या होता है? इट्स अ ट्राइडेंट विद अ डब्ल्यू। ठीक है, ट्राइडेंट इज अ वेपन। अगर आप लोगों ने एक्वामैन देखी हो, या फिर गाइस नो पोसाइडन हु वाज अ ग्रीक गॉड ऑफ वाटर, या फिर अगर आपने लिटिल मरमेड देखी हो, तो उसके अंदर जो एरियल का अब्बा होता है, टाइटन, उसके पास एक वेपन होता है विच लुक्स लाइक दिस, उसे ट्राइडेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्राइडेंट ले लिया और उसके पास डब्ल्यू कर दिया, तो ये वाटर पोटेंशियल का सिंबल हो गया। ठीक है, अच्छा, खैर 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 खैर। दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए बिफोर वी मूव अहेड? हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का, जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं होता। और वो उस वाटर को हम लोग और कौन सा वाला वाटर कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, we're not going to talk about distilled water or pure water at the moment। ठीक है, उसको हम लोग वो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक चीज पे। ठीक है, so let's go back to the solutes, let's go back to the solutes। अच्छा भाई, देखो, जब भी हम लोग सॉल्यूट्स, सॉरी, सॉल्यूशंस, लेट्स गो बैक टू द सॉल्यूशंस। जब भी हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं ना, जनरली हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड। नाउ व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वेरी गुड आंसर। What's the basic difference between these two? In a dilute solution, the amount of water molecules is more compared to the solute concentration. CONC right here is concentration। ठीक है, हाँ, लेकिन देखो बच्चे, सही, यू गाइस आर राइट, यू गाइस आर राइट। लेकिन रहमा, हम हमें कंपैरिजन भी तो करना है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे भाई इट इज मोर वाटर और लेस वाटर, हम ये पूरा बताएंगे कि कंपेयर टू द सॉल्यूट्स मेरा बच्चा, compared to the solutes, very good, Isa. Compared to the solutes, in a dilute solution, the amount of water molecules are higher. But in a concentrated solution, there are less water compared to the solute concentration। ठीक है, अब as Isa told us कि सर, कोई भी अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। बट दो सॉल्यूशंस वेयर द solutes are more than the water molecules, the amount of water molecules is less than the solute, उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो हम लोग ना, यूजिंग दिस वी कैन ऑल्सो चेंज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। We can even say now, okay, osmosis is the movement of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution through a partially permeable membrane। पर partially permeable membrane होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही गाइस? ओके बच्चा लोग, अच्छा, अब एक और चीज करते हैं, लेट्स do this one last thing before I leave you guys। Let's play with words। ये जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है ना, इसका जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम मींस वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग, उसे हम लोग कहते हैं टोनिसिटी। ठीक है, ये बात याद रखिए।
अच्छा, अब ना आई एम गोइंग टू गिव यू टू मोर वर्ड्स. आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्ड हाइपर. आई एम गोइंग टू गिव यू द वर्ड hypo. One of these words means more and the other means less. So which word, hyper or hypo, means more? Hyper means more. And which would mean less? Hypo. ठीक है. आप एक काम करते हैं, हम ना इसको इसका ज्वाइन अप कर देते हैं. अब मैंने कहा कि यार मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है विच इज हाइपोटोनिक, तो इसके अंदर लेस क्या हो गई? सॉल्यूट कंसेंट्रेशन. वेरी गुड. और वो सॉल्यूशंस जो हाइपरटोनिक होंगे उनके पास सॉल्यूट कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा. अब अगर हम लोग इन्हीं वर्ड्स को ना यहाँ पुट करें, अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो हैं, हम लोगों ने यहाँ बता दिया कि भाई कंपेयर टू वाटर उनके अंदर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या वो हाइपरटोनिक होंगे हाइपोटोनिक होंगे? वो हो जाएंगे हाइपोटोनिक. वेरी गुड. और वो सॉल्यूशंस जो कि कंसंट्रेटेड हैं, जिनके पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाइपरटोनिक. वेरी गुड. ठीक है. अब नाउ knowing this what can we do? We can change the definition of osmosis again. हम कह सकते हैं कि भाई osmosis is the movement of water molecules from a hypotonic solution to a hypertonic solution. Why? Because a hypotonic solution has a higher water potential, right? So again, एक और चीज क्या हो जाएगी? कब? थ्रू अ पार्शियली permeable membrane. कब तक? until the water potential becomes equal. All right. So with this we'll stop here. यहाँ रुकते हैं हम लोग. Do we have any questions?